Good evening to all the students. Today in this lecture you will learn about what will be the power of combination of two lenses and when they are combined coaxially and they are in contact. दो lenses हम लेंगे जो दोनों को हम contact में रखेंगे और उनकी combination की इस combination की जो total power है वो power हमें यहाँ पर calculate करनी या जो focal length होगी इस combination की वो कितनी होगी. So that is our topic of the focal length and power of lenses placed coaxially in contact. Placed coaxially in contact. So the diagram will be what? Let this is the first lens. Okay, these lenses are also the thin lenses. This is the second lens, and they are placed in contact. Means यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं. And this lens is L1. This lens name is L2. The focal length of L1 lens is f1. The focal length of L2 lens is f2. Okay. Let their equivalent lens, जैसे हम equivalent पिछले डायग्राम में भी ड्रॉ किया था, let their equivalent lens is represented by this, and this lens is L having the focal length f. So in this case or in this diagram we imagine the point source. यहाँ हम जो source लेंगे that will be the point source, not the source which is placed at the infinity. यहाँ infinity से ray नहीं आएगी जैसा हमने पिछले diagram में लिया था. So in this case we will take the point source here. Let this is the point O. Here also in this case the point source will be at this point O and it is the object. एक तरह से इसको हम object कह सकते हैं. So first ray which is incident, the first ray which is incident on the lens L1, पहला L1 lens पर incident होगा and this will refracted by the lens L1 and let in absence of this lens L2 it form an image at this point. Let it is I dash. एक intermediate image यहाँ भी हम लेंगे. जैसे हमने थिन लेंस फॉर्मूला जब डिराइव किया था तब हमने इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज लिया था कि इंटरमीडिएट इमेज हमने कंसीडर की और फिर हम उस इमेज से हमने वापस से सेकेंड लेंस से रिफ्लेक्शन को या सेकेंड सरफेस से, सॉरी थिन लेंस नहीं, दैट एक्सप्रेशन इज यूज्ड इन लेंस मेकर फार्मूला. लेंस मेकर फार्मूला में जो दोनों सरफेसेस हम लेते हैं, एक बार इसको ऑब्सेंट कंसीडर करते हैं, दूसरी बार इसको ऑब्सेंट कंसीडर करते हैं. क्लियर? तो second part the refraction will take place due to this lens L2 and let this is the final emergent ray due to this combination and form the image at I. So in this case also the light ray incident here and it form the image at I. So इस केस के लिए अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखूंगा then it will be what? It is u and image distance will be what? It is v. Clear? Object distance is u, image distance is v. So remember here we use the thin lens formula for its derivation, and in the derivation of thin lens formula we have already used the negative sign of this object distance u. तो इस फॉर्मूला को डिराइव करते समय हमें इस u को नेगेटिव नहीं लेना है, it will be positive only. Here also let this distance is u, this distance is v and this distance is v dash. जो I dash इमेज बन रही है उसकी पोजीशन को हम अभी v dash ले लेते हैं, वैसे ये v dash आगे चल के कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसका जो पार्ट है वो फाइनल एक्सप्रेशन में नहीं रहेगा, एक इंटरमीडिएट हम इसको इमेज को कंसीडर कर रहे हैं. So draw the diagram. So now write down some introduction considering two lenses L1 and L2 of focal length f1
and F2 respectively, placed coaxially and in contact, placed coaxially and in contact as shown. A light incident on L1 by a point source O and refracted by it and form the image at I dash in absence of L2. ठीक है, यहाँ भी देखो जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला में हम एक सरफेस के लिए दूसरी सरफेस को एब्सेंट मानते हैं और दूसरी सरफेस के लिए फर्स्ट सरफेस को एब्सेंट मानते हैं, वही चीज़ यहाँ भी हम कर रहे हैं। प्लस एक और चीज़ है कि इस आई डैश को, जो कि एक इंटरमीडिएट इमेज है, वी विल इमेजिन दैट दिस वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द रिफ्लेक्शन थ्रू दिस लेंस। क्लियर? दिस इमेज आई डैश विल वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द रिफ्लेक्शन थ्रू दिस लेंस L2। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी ये V डैश होगी और इमेज डिस्टेंस यहाँ पर V होगी। क्लियर? तो वो लाइन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे क्योंकि हमें इस चीज को डेरिवेशन में यूज लेना है। सो द इमेज I डैश वर्क्स एज an object and virtual object, we can say virtual object for refraction through L2। L2 से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये वर्क करती है। दिस वर्क एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू द L2। The final image is formed at point I। ठीक है, वेरियस डिस्टेंसेस आर शोन इन द फिगर। अब एक्चुअल में ये थिन लेंसेज होते हैं, तो आप यहाँ से इन डिस्टेंसेस को मेजर करो या इस पॉइंट सेंटर पॉइंट से करो, फर्क नहीं पड़ता। ओके, एक्चुअल में दिस डिस्टेंस u इज वेरी लार्ज कंपैरेटिव टू दिस वन, सो वी कैन आल्सो टेक, जैसे मैंने यहाँ तक लिए ना ये डिस्टेंसेस, इसमें अपन इसको हम यहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं बिकॉज दे आर थिन लेंसेज और द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम द लेंस कंपैरेटिव टू द एक्चुअल थिकनेस ऑफ द लेंस, एंड दैट्स व्हाई वी कैन इग्नोर दिस विड्थ कंपैरेटिव टू दीज डिस्टेंसेस। अब यहाँ हमें नहीं लग रहा है क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रीसाइज फॉर्म में या इसको एक शॉर्ट फॉर्म में इसको डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज डिस्टेंस पर होगा इसकी विड्थ के कंपैरिजन, इसलिए हम इस डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं या इन डिस्टेंसेस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ वी डिराइव द एक्सप्रेशन for two types of refraction from lens L1 and then lens L2. So first case first, or firstly we can write for refraction through L1 या refraction by L1 using thin lens formula। Here we use the thin lens formula। अगर आपको ये डेरिवेशन अलग से मिलता है तो आप इस तरह से thin lens formula को यूज लेते हुए इसको डिराइव करोगे, और अगर आपको वो डिस्टेंस वाला मिलता है कि दोनों लेंसेज कुछ डिस्टेंस पर है तो उस समय हमें डेल्टा वाला एक्सप्रेशन यूज लेके डिराइव करना। तो ये याद रखना प्रोसीजर क्या होगा या इसको कैसे हम स्टार्ट करेंगे इस डेरिवेशन को। सो थिन लेंस फॉर्मूला में देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u। अब यहाँ नेगेटिव नहीं लेंगे, अभी पहले मैंने बताया, क्योंकि हमने जब थिन लेंस फॉर्मूला डिराइव किया था तब हमने ऑलरेडी u को नेगेटिव लेके डिराइव किया है।
So in further derivation, if we use the same formula, then we do not use their negative signs. But in numericals, we use the negative sign. ये difference मैंने बताया था कि कब हम negative sign use लेते हैं और कब नहीं लेते. Okay? So the object distance is u, image distance is v dash. है ना, इमेज किस कहाँ बन रही है, L1 के लिए हम ले रहे हैं इसको, तो इमेज डिस्टेंस, इमेज इज फॉर्म्ड एट v डैश. क्लियर, दिस इज u एंड दिस इज v डैश. एंड फोकल लेंथ इसकी क्या है, इट इज f1. फोकल लेंथ फॉर द लेंस फर्स्ट L1 इज f1. So therefore we can write 1 upon f1 is equals to 1 upon v dash minus 1 upon u. This is equation number 1. ठीक है, यही था ना, 1 upon v minus 1 upon u is 1 upon f. थिन लेंस फॉर्मूला हमने डिराइव किया था पहले. नेगेटिव साइन आता है, v पहले आता है. सिमिलरली फॉर रिफ्रैक्शन बाय L2 यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं TLF, थिन लेंस फॉर्मूला. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर क्या होगी, इट विल बी v डैश. इस बार ऑब्जेक्ट कौन है, देखो डायग्राम में भी आप इसको मेंशन कर सकते हो. दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर रिफ्रैक्शन बाय L2. L2 से रिफ्रैक्शन के लिए इसको हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे. तो ये डायग्राम में भी आप मेंशन कर सकते हो, जिससे कि आपको डेरिवेशन याद रहे कि करना कैसे. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज v डैश एंड इमेज डिस्टेंस विल बी v, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, आई पर बन रही है, तो इसलिए इसको v कहेंगे. एंड फोकल लेंथ फॉर दिस लेंस इज ऑलरेडी नोन, इट इज f2, जो हमने शुरू में इसको डिस्कस किया था, इंट्रोड्यूस किया था, सॉरी. सो द थिन लेंस फॉर्मूला विल बी व्हाट, देयरफॉर 1 upon f2 is equals to 1 upon v minus 1 upon v dash. इस बार ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, v dash आएगा. एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इमेज डिस्टेंस इज v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज v dash. So this is equation 1 and this is equation number 2. So take the screenshot fast. Now we add these two equations, equation 1 और equation 2 को देखो ऐड करते हैं, v dash वाली टर्म कैंसिल होगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो दे विल कैंसिल आउट. मैंने कहा था वो एक इंटरमीडिएट इमेज होती है जिसको हम जस्ट डेरिवेशन में यूज लेते हैं, बट इट विल नॉट कम इन द फॉर्मूला ऑफ दिस एक्सप्रेशन जो हम डिराइव करने जा रहे हैं. सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, adding equations 1 and 2 implies 1 upon f1 plus 1 upon f2 is equals to 1 upon v minus 1 upon u. अब आप चाहो तो इसमें वो लिख सकते हो, एक में प्लस 1 अपॉन v डैश, एक में माइनस 1 अपॉन v डैश, और फिर इसको कैंसिल करो. ओके, सो लेफ्ट को राइट में लिख रहा हूं मैं, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2. नाउ इन दिस डायग्राम, if we apply the thin lens formula, which is the equivalent length of this combination, okay, this one is what, it is the equivalent length of this combination. So if we apply this thin lens formula here, तो क्या होगा, देखो 1 upon f is 1 upon v minus 1 upon u आएगा. ओके, जो एक जनरल थिन लेंस फॉर्मूला होता है. सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, द थिन लेंस फॉर्मूला फॉर दिस केस इज, लेट इक्वेशन नंबर 3, इसको डायग्राम में ही मैंने शो कर दिया, या रेफरेंस देके लिख लेना फ्रॉम फिगर 2, या अप्लाइंग थिन लेंस फॉर्मूला इन फिगर 2. दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्विवेलेंट लेंस. ये जो लेंस है ना, ये उसका इक्विवेलेंट लेंस है, इट इज द इक्विवेलेंट लेंस. So from using equation 3, और या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, you already know 1 upon v minus 1 upon u is 1 upon f, and it is 1 upon f1 plus 1 upon f2. This is the relation between the focal lengths of this L1, L2 and L. इन तीनों की फोकल लेंथ में ये रिलेशन होगा
कि फर्स्ट की फोकल लेंथ और सेकंड की फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल का सम इक्विवेलेंट की फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल है। सो दिस इज द रिलेशन। और इसी को अगर हम पावर में लिखें तो 1/f इज व्हाट पावर। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज P equals to P1 plus P2, okay, in terms of power. The equivalent power we can say या इस combination की जो power है, तो P equals to what? It is P1 plus P2. If यहाँ भी हम जैसे देखो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ऐसा ही आता है एक्सप्रेशन, कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तभी ऐसा एक्सप्रेशन आता है, ओके। सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब भी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ऐसा ही एक्सप्रेशन आता है। सो यू गेट द सेम एक्सप्रेशन इन केस ऑफ पावर कॉम्बिनेशन ऑल्सो फॉर द लेंसेज, ओके। सो इसमें भी हम एक जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना कि इफ देयर आर एन लेंसेज प्लेस्ड कोएक्सियली, अगर एन लेंसेज को हम कोएक्सियली प्लेस करें इन कांटेक्ट, इफ एन लेंसेज आर प्लेस्ड कोएक्सियली इन कांटेक्ट, देन कांटेक्ट में होते हैं तो डायरेक्ट ऐड होते हैं, उसमें वो डी वाला एक्सप्रेशन नहीं आता, लेकिन वो डी वाला जो एक्सप्रेशन था वो हम इन जनरल नहीं लिख सकते एन टर्म्स के लिए, क्योंकि उसमें और ज़्यादा टर्म्स ऐड होगी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज़ें। तो यहाँ हम लिख सकते हैं P will be what? P1 plus P2 plus P3 and so on Pn, and it is sigma Pi, where I will be from 1 to n, okay। so अगर सारे आइडेंटिकल हो, for all identical, for all n identical lenses, अगर सारे lenses आइडेंटिकल होंगे तो P क्या हो जाएगा? इट इज n टाइम्स ऑफ P, या n टाइम्स ऑफ P1 कह सकते हैं, क्लियर? या n टाइम्स ऑफ स्मॉल p ले लो, चलो स्मॉल p किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी सबकी पावर जो है वो p के इक्वल है, तो p प्लस p n टाइम्स ऑफ p होता है। तो स्मॉल p क्या है यहाँ पर? इंडिविजुअल की पावर, पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस, यानी हर ईच लेंस कह सकते हो, ईच लेंस की पावर को हमने स्मॉल p का है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बोथ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस जो हमें यहाँ पर लेंस के रिगार्डिंग करने थे, कि एक को हमने कांटेक्ट में रखा और सेकंड हमने उसको डी डिस्टेंस अपार्ट किया। सो दोनों के एक्सप्रेशंस याद रखना, डेरिवेशन के स्टेप्स प्रोसीजर वाइज याद रखना कि उसमें जहाँ डी डिस्टेंस होती है दोनों लेंसेज के बीच, वहाँ डेल्टा से हम इसको सॉल्व करते हैं, और जहाँ हम इनको कांटेक्ट में रखते हैं वहाँ हम थिन लेंस फार्मूला यूज लेके सॉल्व करते हैं। और इसका प्रोसीजर और जो लेंस मेकर फार्मूला है इसका प्रोसीजर सेम है। सेम किस सेंस में कि हम इंटरमीडिएट इमेज को यहाँ पर कंसिडर करते हैं और वो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों डेरिवेशन सेम है, ओके। सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट।